date we have already finished our major sections of your pharmacology. Okay, so we have already completed your some posological terms, some posological formulas, and last, that is nothing but your Latin terms. So they might ask you, already they have asked a few times. Okay, so those points we are going to see. What are the different parts of prescription? So you might have seen the prescription आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं. इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता जाता है. ठीक है, आपका जीपैट हो, नाइपर हो, आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता है. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. So there are around 8 part of prescription. Okay, there are around 8 part of prescription. So in the first part you will have patient information. First part patient information, which is not important for our exams. Okay, कि ये important नहीं, ऐसा नहीं होता, ये important होता है लेकिन अपने एग्जाम के लिए नहीं. ठीक है, तो इसको छोड़ दो. पार्ट पेशेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा. इसमें पेशेंट का नाम रहेगा, नेम ऑफ पेशेंट, then age, then sex, weight, and other physiological parameters reported. Those kind of information will be there in the patient information. But first of all, what is meant by prescription? So prescription is nothing but it is a written order to the pharmacist. Okay, it is a written order to a pharmacist given by a prescriber or a physician. Okay, which consists of details of medication to be given to the patient. Okay, so there are different part of prescription. पहले क्या होता था, पहले जमाने में, कि आजकल क्या है, अभी सब रेडीमेड है. मतलब in today's era, their medicines are ready-made. They are prepared. Okay, so they are already prepared. They are directly packed and they are supplied in a unit dosage form or suspension. Take a suspension. It is a ready-made suspension available, packed in bottle. Okay, you just go take a name of suspension, and the pharmacist will dispense you. Okay, but what was happening in the ancient time? So there was no ready-made dosage forms. Okay, so at that time doctor used to prescribe the medicine to the patient, and after that the prescription is taken to a pharmacist. Pharmacist will receive that prescription. He will compound the preparation. Okay, means he will make the preparation over there in the in the dispensing pharmacy. So at that time there was a dispensaries was there. Okay, so where compounding and dispensing of medicine was practiced, but nowadays it is not there, and because of industrialization and various dosage form, they are directly available in the store. Okay, now nobody is practicing such kind of practice. That is a dispensing pharmacy, but it is not of our interest. Our interest is in the questions that is asked in the GPAT. Okay, GPAT Niper and other exams. So part of prescription, there are different part of prescription. There are around 8 parts of prescription. First part will be patient information like name, age, sex, physical condition, and etc. Okay, then next important part is superscription. This question has already asked a lot of times. So in this superscription part, there will be a symbol of RX. There will be a symbol of RX. Okay, so that RX symbol is in a superscription, and in the meaning of this RX is a Latin meaning. Okay, so Latin means is nothing but the RX means take do means recipe. Recipe means what you take. Okay, recipe, it is a RX means it is a recipe, means it is a different name of medications or different formulation that you have to take, means patient has to take. Okay, so that is RX is present in the superscription. Okay, now you take this, and this RX was a symbol. It was derived from a symbol of God of healing. At that time, they used to believe there is one God which is involved in the healing of patient who is ill. Okay, so that God of healing is nothing but the Jupiter. Okay, so Jupiter is God of healing, and the symbol RX is in its context. इसकी वजह से वो RX सिंबल दिया जाता है वहां पे. तो सुपरस्क्रिप्शन में याद रखो कि RX सिंबल रहता है सुपरस्क्रिप्शन में, और उसका मीनिंग क्या है?
यू टेक और टेक दो मीन्स आपको ये लेना है, क्या लेना है, रेसिपी, जो भी रेसिपी मतलब जो भी मेडिकेशन दिया है वो, और वो आर एक्स सिंबल क्यू 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 दिया है वहां पे, उस टाइम पे ये सिंबल गॉड का है ऐसे कंसिडर करते थे। कौन सा गॉड? गॉड ऑफ हीलिंग, दैट इज नथिंग बट द जुपिटर। ओके, ये सुपरस्क्रिप्शन। इसके बाद आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मीन्स इन दिस पार्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज इन दिस पार्ट the actual name of medicines will be prescribed. Okay, the formulation and all that. Okay, so name of medicines are prescribed in the inscription. ये याद रखो कि इस सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, आर एक्स सिंबल होता है, इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, आपका मेडिसिन प्रेस्क्राइब जो है वो होता है, बाद में सुपरस्क्रिप्शन, बाद में सब्सक्रिप्शन, सॉरी सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन, ये तीन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो सब्सक्रिप्शन में क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन में रहेगा आपका इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, कि फार्मासिस्ट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन रहेंगे, कि कौन सा एडिटिव इसको, मतलब होता है ना कि कोई एलर्जी होता है किसी को, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट रहेंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, इमल्शन प्रिपेयर करना है या सस्पेंशन करना है, या फिर आपको सपोजिटरी बनाना है उसका, या फिर आपको ड्रॉट देना है, या जो भी मतलब जो भी फॉर्मुलेशन बनाना है, वो सब इंस्ट्रक्शन किसको रहेंगे, वो सब रहेंगे फार्मासिस्ट को। और कहाँ रहेंगे, सब्सक्रिप्शन में। तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, आर एक्स, दैट इज अ टेक दो रेसिपी और इट इज अ सिंबल ऑफ गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर। देन इंस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, ऑल द नेम्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। देन सुपरस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, ओके, टू प्रिपेयर अ डिफरेंट डोसेज फॉर्म। ओके, देन ट्रांसक्रिप्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन मतलब इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, कि आपको रहता है ना प्रिस्क्रिप्शन पे रहता है, देखो आपने देखा होगा BID, TID, ओके, SOS, PID मीन्स BCD, BCD मीन्स ट्वाइस अ डे, TID मीन्स थ्राइस इन अ डे, ओके, SOS मीन्स व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा रहता है। मतलब दैट इज नथिंग बट द इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। ओके, सो इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट किस में होता है, ट्रांसक्रिप्शन में। इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट किस में होता है, सब्सक्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, एक्चुअल नेम ऑफ मेडिसिन, और RX में कहाँ पे होता है, सुपरस्क्रिप्शन में। ये चार याद रखो आप। बाद में सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर कहाँ पे होता है, फिजिशियन का सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद में जो प्रिस्क्रिप्शन है उसका रिन्यूअल कब करना है, फिर से कब उसको डिस्पेंस करना है, वो सब आपका इधर रहेगा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में। उसके बाद सबसे नीचे आपका क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा आपका उसका डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो प्रेस्क्राइबर है। सो इन द लास्ट सेक्शन देयर विल बी सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, देन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड ऑल दैट, डिग्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जस्ट इट इज इंपॉर्टेंट। या इसमें से आपको एक या दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आ सकता है उसमें, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। ये चार वर्ड्स में बहुत लोगों को इसमें आपको कंफ्यूजन होता है। सुपरस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, सुपरस्क्रिप्शन जो है उसमें क्या रहेगा, इंस्क्रिप्शन में क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन में क्या रहेगा, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या रहेगा। तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मतलब ये एक सिली क्वेश्चन टाइप होता है, एक सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको उस टाइम पे गलती कर देते हो, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, ट्रांसक्रिप्शन इट इज अ इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, सब्सक्रिप्शन इंस्ट्रक्शन टू द फार्मासिस्ट, इंस्क्रिप्शन actual name of medicines, okay, and superscription means RX symbol, that is a god of healing Jupiter, okay, that is nothing but the recipe, okay, याद रखो। next, now types of incompatibilities. So as I have told you, in the ancient time, when there is a when there is a newly practiced medicine, at that time they used to dispense the medicine, they used to formulate the medicine in the डिस्पेंसरी और शॉर्ट स्मॉल फार्मेसी, ओके, वहां पे तब डिस्पेंसिंग फार्मेसी का प्रैक्टिस किया जाता था, और तब वो डॉक्टर जैसे प्रेस्क्रिप्शन दिया। आजकल क्या होता है कि आजकल प्रेस्क्रिप्शन ले लो आप, वहां पे ऑलरेडी डोसेज फॉर्म का नाम लिखा होता है या ब्रांड नेम लिखा होता है, ब्रांड नेम डायरेक्टली। ब्रांड नेम मान लीजिए कि आपका ब्रांड नेम लिखा है डॉक्टर ने, कालपोल 500 टैबलेट, तो आप प्रेस्क्रिप्शन लेके जाएंगे मेडिसिन शॉप में और मेडिकल में, तो वो क्या करेगा, फटाक से एक बॉक्स निकलेगा, उसमें कालपोल नाम का टैबलेट निकलेगा, दे देगा आपको। उसने क्या किया, सिर्फ वो
टैबलेट उठाया दिया आपको, बिल दे दिया आपको, और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दे दिया, मतलब खाना खाने के बाद लेना है, खाना खाने से पहले लेना है, एलर्जी है कुछ ये हो। लेकिन पहले जमाने में क्या था कि पहले जमाने में जो फार्मेसी थे वो अलग टाइप के थे। वहां पे तब बड़े बड़े यूनिट्स नहीं होते थे, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं थे कि फॉर्मुलेशन करे और फॉर्मुलेशन करके बना के रखे। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जब डॉक्टर के पास पेशेंट आएगा, डॉक्टर ने चेकअप किया, सो फिजिशियन यूज टू प्रेस्क्राइब सर्टन मेडिसिन टू हिम, दैट प्रेस्क्रिप्शन वाज carried to a pharmacist. Pharmacist was used to evaluate that prescription, was to read, then handling and all that. That is a part of your semester exam. Okay, handling of prescription and all that. उस टाइम पे बाद में फिर वो the pharmacist used to make a dosage form according to the prescription. Okay, so if they have written make a make a suppository, then pharmacist used to make suppository from that formulation. Okay, so whatever it is, so during that time what was happen, उस टाइम पे क्या होता था कि मल्टीपल ड्रग जो है, उस टाइम पे जो मल्टीपल ड्रग है, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है, पैरासिटामोल के साथ में अगर डॉक्टर ने बोला कि डिस्पेंस 5 पैरासिटामोल टैबलेट, एक पेशेंट को बोला है कि डिस्पेंस 5 पैरासिटामोल टैबलेट, तो उसको में क्या है, पैरासिटामोल का एक्टिव ड्रग लेंगे वो जो फार्मासिस्ट है, उसके बाद में जो उसका एडिटिव्स है, जैसे टाल्क हो गया या फिर आपका मैग्नीशियम स्टीरेट, वो मैग्नीशियम स्टीरेट तब नहीं यूज करते लेकिन टाल्क तो यूज करते, टाल्क लेगा और टैबलेट बनाएगा, मोल्डिंग बाय मोल्डिंग। अभी तो टैबलेट कॉम्प्रेशन से बनता है, बट उस टाइम पे जो टैबलेट बनता था वो मोल्डिंग से बनता था। उसके साँचे ढांचे आते थे, जैसे अपन ईंट बनाते हैं ना, जैसे ब्रिक्स का एक डाई आता है, वैसे टैबलेट के डाइज आते थे, एंड दैट टैबलेट यूज टू कॉल्ड एज टैबलेट बाय मोल्डिंग। ओके, तो उस टाइम पे मोल्डिंग से होता था। तो जो भी एडिटिव है आपका ड्रग है, उसके उसके बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी है तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकता था। ओके, सो टाइप्स ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटीज, व्हाट डू मीन बाय इनकॉम्पेटिबिलिटी? सो इफ एनी फिजिकल, केमिकल और pharmacological changes that occurs due to a physical or chemical interaction between drug or drug excipient or anything or physical chemical changes, so that will render the formulation inappropriate to use. Okay, अगर फॉर्मुलेशन में अगर दो चार मिक्सचर है, दो तीन ड्रग का दिया है या फिर कोई एडिटिव है, अगर कोई एडिटिव दूसरे एडिटिव से या फिर कोई ड्रग दूसरे ड्रग से या फिर ड्रग एडिटिव अगर कंपेटेबल नहीं है, तो व्हाट हैपेंस, दैट लीड्स टू सम फिजिकल चेंजेस, सम केमिकल चेंजेस एंड सम even loss of potency of the drug. So that is nothing but the incompatibility, and that is a highly undesirable. Okay, so that type of incompatibility they used to happen in the while preparing the formulation during dispensing. So what are they? They are divided into three types: physical, chemical, and therapeutic incompatibilities. Okay, physical incompatibility, physical incompatibility, chemical incompatibility, and therapeutic incompatibility. So physical means what? There will be physical change, like for example, like insolubility, then liquefaction, precipitation, and immiscibility. So for example, talc is insoluble in water. Most of the drugs are insoluble in water. Okay, so insolubility, to solubilize them you have to use certain surfactants, certain wetting agents. Okay, so that type of incompatibility is known as a insolubility. Okay, liquefaction means what? Certain drugs, when they are combined together, for example, you take a phenol, menthol, thymol, etc. So they will, if they are combined together, their melting point of resultant mixture gets down. Okay, and they liquefies, so that is a liquefaction. Precipitation means what? When two drugs are present in the formulation, that leads to formation of precipitate, that is a precipitation. Immiscibility, when two drugs are mixed, they are immiscible. So such kind of incompatibilities, they are physical. Then second class is chemical incompatibility. So chemical incompatibility means what? Certain chemical changes will be there. So the excipient or drug excipient may interact with each other to form change in the color of formulation, to cause effervescence,
lead to precipitation, then decomposition. Such kind of incompatibilities are known as a chemical. Then therapeutic incompatibility means very simple. If two opposite physiological drug or two opposite physiological action or two drugs having opposite physiological action, if they are combined together, that will result in the therapeutic incompatibility. मतलब जैसे देखो वहां पे एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ पे सीएनएस स्टिमुलेंट सीएनएस डिप्रेसेंट सीएनएस स्टिमुलेंट सीएनएस डिप्रेसेंट मतलब आपको कैफीन दे दिया एक साइड पे और उसी प्रिस्क्रिप्शन में आपको डाइजिपम दे दिया तो कैसा चलेगा डाइजिपम डिप्रेस करेगा कैफीन स्टिमुलेट करेगा सो स्टिमुलेशन डिप्रेशन दे आर अपोजिट एक्शन सो दैट इज अ थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी लेक्सेटिव एस्ट्रिंजेंट लेक्सेटिव क्या करेगा आपका स्टूल को फॉर्म करेगा स्टूल पास करेगा एस्ट्रिंजेंट क्या करेगा स्टूल पास नहीं होने देगा तो दैट इज इनकम्पेटिबिलिटी थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी एट्रोपिन मॉर्फिन सो एट्रोपिन एंड मॉर्फिन एट्रोपिन क्या करेगा माइड्रेसिस करेगा मॉर्फिन क्या करेगा पिन पॉइंट रिपील करेगा सो दैट इज अ थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी एसिटिलकोलिन एड्रेनालिन अगर आपको एसिटिलकोलिन भी लिखा है और एड्रेनालिन भी इंजेक्शन दिखा है और एसिटिलकोलिन का भी लिखा है तो नहीं चलेगा ना क्योंकि both are the physiological antagonists okay so such kind of incompatibility if present in the prescription that is known as a therapeutic incompatibility for example caffeine chlorohydrate etc so caffeine is a CNS stimulant chlorohydrate is a CNS depressant okay so they are having opposite action so if there is opposite action in the same prescription एक ही प्रेस्क्रिप्शन में दो ड्रग है जो अपोजिट है एक के अगर ऐसा है तो वो प्रिस्क्रिप्शन में कौन सा इनकम्पेटिबिलिटी है थेरापेटिक इनकम्पेटिबिलिटी ठीक है आपको मालूम होना चाहिए कि बड़े मीन बाय फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि आपका लिक्विफिकेशन होगा या फिर आपका इंसोल्युबिलिटी होगा या फिर आपका प्रेसिपिटेशन होगा ठीक है इमिसिबिलिटी होगा केमिकल में क्या होगा केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एडजस्टेड एंड टॉलरेटेड ओके सो इन दिस केस you might have change in the color of your formulation you might have effervescence in the formulation precipitation or decomposition so that is a chemical incompatibility so broadly incompatibilities are classified into three types okay so what do you mean by incompatibility first so incompatibility means a interaction of a drug with another drug or a drug with excipient or excipient interacting with excipient which results in a undesired effect or undesired which will change the color of your formulation which will change the nature of your formulation or which will change the pharmacological effect of your formulation so that is nothing but the incompatibilities so that may be either divided into three physical chemical and therapeutic okay now we'll see one by one there are a lot of examples in the books but each and everything will not be taken and that is not much important so whatever is important that is so incompatibility is nothing but the a is a physical chemical or therapeutic reactions of drug with other drug or its ingredients or additives in the formulation okay so this interaction they are rendering the formulation inappropriate to use okay so if any interaction between drug or drug additives or additives so that result in the rendering of the formulation inappropriate to use so that is incompatibility physical incompatibility for example they can caused by immiscibility insolubility in the formulation for example liquification is there okay so I will explain sulfur powder and corticosteroid drugs antibiotics sulfur powder corticosteroidal drugs antibiotics they are not soluble in the water okay so if anybody for example अगर आपके physician ने आपको prescribe किया है कि फ्लूकॉर्टिजोन का आपको सस्पेंशन डिस्पेंस करने के लिए बोला है और आपने लिया जो भी डोसेज दिया है उन्हें मान लीजिए उन्होंने दिया है कि 10 मिलीग्राम प्लीज डिस्पेंस 10 मिलीग्राम ऑफ फ्लूकॉर्टिजोन इन अ सस्पेंशन तो आप क्या करेंगे सस्पेंशन बनाएंगे लेकिन
लेकिन वो जो है ना वो वेट ही नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग सॉल्युबिलिटी। उसको वेटिंग करने के लिए आपको सस्पेंडिंग एजेंट डालना पड़ेगा, या फिर वेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा, या फिर सरफेक्टेंट यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज अ लिटिल बिट insolubility टाइप ऑफ incompatibility. Now next one is excess of flocculating agent may result in the claying. So control of concentration of wetting agent. अगर वो फॉर्मुलेशन में अगर बहुत ज्यादा आपने ये कर लिया क्या, वेटिंग एजेंट मतलब क्या, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट। थोड़ा सा डिफरेंस है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट में और वेटिंग एजेंट में। वेटिंग एजेंट में क्या करेगा कि जो कांटेक्ट एंगल होता है, कांटेक्ट एंगल ऑफ पार्टिकल विद द solvent that will be increased in case of that will be increased by wetting agent। तो वो फिजिकल फार्मेसी में जब अपन देखेंगे, वो मैं बोलूंगा उस टाइम पे आप इतना याद रखो कि सोलिबिलिटी या फिर वेटिंग करने के लिए वेटिंग एजेंट यूज करते हैं। मतलब आप यही बाकी सब होते हैं जो सरफेक्टेंट जो थे वही दे आर एक्टिंग एज अ वेटिंग एजेंट। ओके, so excess of flocculating agent when used in the formulation of suspension, so it usually leads to claying मतलब जो होता है ना केक फॉर्मेशन ऑफ केक, क्लेइंग। सो concentration of wetting agent you have to control it due to changes in the solvent in case of tincture precipitation may occur due to changes in the solvent, like in case of tincture। जो जो पहले वाली प्रैक्टिस थी डिस्पेंसिंग की, उसमें क्या होता था, टिंक्चर ऑफ बेंजोइन, ठीक है, देन एरोमेटिक वाटर ऑफ क्लोरोफॉर्म का एरोमेटिक वाटर ऑफ बेंजोइन टिंक्चर, ऐसा टिंक्चर वगैरह दे यूज टू डिस्पेंस दिस काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन। सो इफ the tincture they used to have solubility in particular solvent, and if you change the solvent, if you am I audible you clearly? Okay, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे टिंक्चर हो गया आपका, टिंक्चर हो गया तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, अल्कोहल में सोल्यूबल है, लेकिन अगर वाटर डालेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा आपका। सो ड्यू टू चेंज इन द सॉल्वेंट, लाइक इन केस ऑफ टिंक्चर, सो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन में ऑकर। मान लीजिए कि आपको बोला है कि डिस्पेंस द बेंजोइन टिंक्चर, और आपने क्या किया, बेंजोइन टिंक्चर ले लिया अल्कोहल में, और तब तो वो बन गया, मतलब वो हो गया, ओके सोलिबिलिटी है उसका अल्कोहल में, लेकिन बाय चांस या फिर आपने कम अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन जो प्रिस्क्राइब वो नहीं लिया, या फिर आपके पास आपने चेंज किया वाटर किया सॉल्वेंट, तो वाटर में अगर डालेंगे तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट द फिजिकल टाइप ऑफ incompatibility, insolubility, that is a precipitation। Okay, next, due to high concentration of electrolyte may cause cracking of emulsion by salting out। Okay, salting out emulsifying agent। अगर if you add high concentration of electrolyte in a suspension, that will leads to cracking of if you add large quantity of electrolyte in the emulsion, that will cause cracking of emulsion by salting out phenomenon, salting out of emulsifying agent, salting out phenomenon होगा और emulsion break हो जाएगा। तो that is also one of the type of physical incompatibility। इसके ऊपर कभी एक आध बार क्वेश्चन आता है, नहीं तो आता भी नहीं। For example, benzoyluconium chloride and sodium lauryl sulfate, because they are having opposite charge, if they mix together they will precipitate। Okay, benzoyluconium chloride is also used as a cationic surfactant। then sodium lauryl sulfate is a anionic surfactant। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा बेंजोयलुकनियम क्लोराइड पे, सोडियम लॉरेल सल्फेट माइनस होगा। अगर इन दोनों को मिक्स करेंगे आप, तो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन इन द योर प्रेस्क्रिप्शन, योर फॉर्मुलेशन। सो दैट इज नथिंग बट द फिजिकल incompatibility। Now liquefaction, I already told you certain chemicals like phenol, thymol, then phenol, thymol, camphor, menthol, when these are mixed together, if they are present in a prescription together, and अगर मान लीजिए कि आपको बोला कि मेंथॉल और थाइमोल और क्लोरोहाइड्रेट, इनका आपको क्या बनाना है, इनको आपको पाउडर बनाना है, ठीक है। पाउडर डिस्पेंस 25 ग्राम ऑफ पाउडर ऑफ कैंपर, मेंथोल एंड
थाइमोल, अगर इसका बोला है डिस्पेंस करने के लिए, अगर आप उसको लेंगे मोटर पेस्टल में, जब उसको मिक्स करेंगे तो दैट पाउडर विल गेट लिक्विड, ठीक है, बिकॉज these compound having tendency when mixed together they will lower down the melting temperature of resultant mixture. That is nothing but the melting point. Okay, so due to lowering of melting point upon addition upon another substance, okay, such mixtures are known as eutectic mixtures. Okay, they will be liquefied. Okay, when you try to mix camphor menthol phenol in a mortar pestle, due to lowering of melting point there will be liquification, and this such kind of mixture is known as a eutectic mixture. Okay, that is a liquification. For example, aspirin भी आपका aspirin, अगर aspirin भी इनके साथ में अगर कोई ट्राइचुरेट करेंगे तो liquefaction होगा. So that is a liquefaction phenomena. It is also a type of physical incompatibility. Next, sodium salicylate with above. Okay, sodium salicylate अगर इसके साथ में आ गया डिस्पेंस करने के लिए तो उसमें भी आपका लिक्विफिकेशन हो जाएगा. एस्पिरिन एंड फिनेजोन ट्राइचुरेटेड टुगेदर, they will also get liquefied. Now what, at that time there is one solution for that. उस टाइम पे अगर कोई मिक्सचर है वो लिक्विफाई हो रहा है तो उसमें एक सोल्यूशन था क्या कि उसमें केओलिन का पाउडर डाल दो. सो एडसॉर्बेंट पाउडर लाइक केओलिन, यू हैव टू ऐड एडसॉर्बेंट पाउडर लाइक केओलिन का पाउडर डालो और फिर उसको मिक्स करो, तब क्या होगा, तब उसका लिक्विफिकेशन नहीं हुआ. ठीक है, सो ये एक इम्पोर्टेंट है, आपको कभी आ भी सकता है इसका. व्हाट इज मीन बाय यूटेटिक मिक्सचर, ये ऑलरेडी आ चुका है एक बार क्वेश्चन. नाउ केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें क्या होता है, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मोस्टली चेंजेस इन द पीएच, देन डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मुलेशन, डबल डिकम्पोजिशन, then complex formation. So these kind of changes occurs in the chemical incompatibility. This may be because of these chemical incompatibility. They are two types. They may be of adjusted incompatibility or tolerated incompatibility. इसमें दो टाइप का होता है. एडजस्टेड कि जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है. टॉलरेटेड मतलब आपको मालूम है कि ये इनकॉम्पेटिबिलिटी है इसमें, लेकिन उसका जो है that will not affect the therapeutic value of that dosage form. So that is tolerated. आप सह सकते हो कि ठीक है कलर चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरा इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए. मान लीजिए कि आपका कोई फॉर्मुलेशन है वो कलरलेस फॉर्मुलेशन है और क्या हो गया, उसका इनकॉम्पेटिबिलिटी हो गया उसमें और उसको कलर आ गया लेकिन उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ. सो दैट इज अ टॉलरेटेड. ठीक है, सो केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी मे बी ऑफ टू टाइप. First one is adjusted. For example, barbiturates, they are almost insoluble in water. Barbiturates, okay, and their sodium salts are soluble in water. So solution of salt of barbiturates are very alkaline and are incompatible with the acids. Okay, so मान लीजिए कि आपको बोला है कि फिनोबार्बिटॉन सोडियम का क्या करना है, आपको सोल्यूशन बनाना है. फिनोबार्बिटॉन सोडियम का सॉल्यूशन आपको डिस्पेंस करने के लिए बोला है और आपने उसमें क्या किया, आपने वो सॉल्यूशन लिया, फिनोबार्बिटॉन प्रेस्क्राइब्ड जो क्वांटिटी है उसका क्वांटिटी लिया, एडिटिव्स लिया और बाद में उसको फ्लेवर आने के लिए आपने क्या किया, लेमन सिरप डाल दिया उसमें. ठीक है, सो लेमन सिरप इज नथिंग बट इट इज हैविंग साइट्रिक एसिड. ओके, नाउ योर ड्रग इज it is a salt, that's why it is a basic, and you are using lemon syrup means citric acid. So there may be a chances of precipitation. Okay, so barbiturates are almost insoluble in water and their sodium salts are soluble. Okay, solutions of salt of barbiturates are very alkaline. Okay, they are basic in nature and are incompatible with the acids like lemon syrup, ammonium bromide, and this may leads to precipitation corresponding to barbituric acid and it can be minimized by, so this precipitation can be minimized by adjusting the pH of solution. So it is a adjusted incompatibility. यहाँ पे incompatibility है कौन सा, precipitation हो रहा है, लेकिन उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं कैसे, it can be minimized by adjusting the pH of solution. ठीक है, those kind of chemical incompatibility which can be adjusted, they are known as a adjusted incompatibility. Now second one is a tolerated.
So the incompatibilities that can be tolerated in the formulation which doesn't affect the therapeutic value of that. Okay, मैंने बोला था जैसे कलर चेंज हो गया लेकिन उसका इफेक्ट चेंज नहीं होने वाला, आपको मालूम है, तो दैट इज नथिंग बट द टॉलरेटेड precipitation reactions due to changes in the solvent, due to changes in the solvent. For example, in case of alkaloids, so alkaloids they are mostly insoluble in water, so they are soluble in a organic solvents. Okay, their salts are soluble in water, but as such alkaloid and free bases are soluble in the only organic solvent. और आपने अगर उसमें वाटर डाल दिया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा उसका, ठीक है. That is also one of the chemical incompatibility. For example, you can take nascapine, then papaverine. They are extremely insoluble, okay, in the water. Extremely insoluble in the water. They are pure bases. So you have to use co-solvent. Like citric acid is used for nascapine as a co-solvent to make a solubilize. Then they are incompatible with the alkaline media and they get precipitated. Strychnine hydrochloride, which is incompatible with the aromatic spirit of ammonia, which will get precipitated. अगर स्ट्रिक्निन हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना के लिए डिस्पेंसरी में और आपने उसमें अमोनिया स्पिरिट डाल दिया तो उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा. दैट इज अ प्रेसिपिटेशन. सैलिसिलिक एसिड इज इनकम्पेटिबल विद द लेमन सिरप एंड अदर सिट्रस फ्लेवर. ठीक है, सैलिसिलिक एसिड का क्या है, सैलिसिलिक एसिड भी एसिडिक है, लेमन सिरप भी एसिडिक है, तो that will get precipitated out. Okay? Sometimes what happens sometimes in a while during the dispensing, compounding and dispensing, there is a evolution of carbon dioxide result in the evolution of carbon dioxide. So in case of borax, so CO2 evaluation in the preparation of borax, sodium bicarbonate and glycerol. If these three are present in the formulation, sodium bicarbonate and borax are present in the formulation, you will get evaluation of carbon dioxide. वहाँ पे गैस बनेगा. बोरेक्स जो है वो बेसिक है, सॉरी बोरेक्स मतलब बोरिक एसिड. ठीक है, बोरिक एसिड एसिडिक होता है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिक होता है. इनका रिएक्शन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा. सो टू प्रिवेंट दैट ग्लिसरॉल, अगर ऐसा फॉर्मुलेशन होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकता है. ठीक है, सेम इज ट्रू विद द अमोनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट विद स्किल सिरप और एसिडिक ड्रग. अगर एसिडिक ड्रग है और उसमें आपने ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो सच काइंड ऑफ compatibility they comes under the chemical incompatibility. Now next one is a therapeutic incompatibility due to therapeutic alteration of response. अभी due to alteration of therapeutic response, so मैंने बोला था आपको कि अपोजिट ड्रग देंगे अगर CNS stimulant, CNS depressant, तो therapeutic incompatibility. Adrenaline, acetylcholine, therapeutic incompatibility. Yeah. So now therapeutic incompatibility may be because of two reasons. So first is it may be because of your pharmacokinetic reasons. Okay, pharmacokinetic alterations. For example, calcium, magnesium, iron और जो भी metals ion होते हैं, calcium, magnesium, they are incompatible with the tetracyclines. Tetracyclines are nothing but the antibiotic. Okay, so tetracyclines are weak acidic tetracyclines are there. They are having acidic nature. So they used to form a salt with calcium, magnesium, and all the metal ions. And the complexes are which are insoluble. Okay, ये insoluble होते हैं complexes, and now tetracycline cannot be absorbed. If tetracycline is combined with these ions, it is not absorbed from the stomach. So that is the therapeutic type of therapeutic incompatibility because of pharmacokinetic interaction. और ये जो टेट्रासाइक्लिन का इनकॉम्पेटिबिलिटी है वो फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी में भी आता है, सो केमिकल में आता है, नॉट फिजिकल, केमिकल में आता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज नथिंग बट द केमिकल फिनोमेना. सो द इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स with the milk and milk products inside the gut, they are chemical incompatibility. बट अगर यही टेट्रासाइक्लिन किससे कंबाइन हो रहा है, ब्लड में जो आयंस होते हैं उनके साथ अगर कंबाइन होता है तो दैट इज थेरेपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी. अगर ये मतलब ये एब्सॉर्ब होने के पहले होता है
तो उसको बोलेंगे अपन केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। अगर ये बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको बोलेंगे अपन थेरापेटिक। Again, fluoroquinones antibiotics, they are also will formulate with the calcium and magnesium with the reduced absorption. Then pharmacodynamic incompatibility. Atropine containing drug, milk. Okay, so sorry, amine containing drug. जो amine होता है आपका, amine containing drug, milk, food like ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट जो होता है आपका, ठीक है। सो जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट होता है या फिर आपका माओ इनहिबिटर्स जो होता है, ठीक है, माओ इनहिबिटर्स जो होता है, माओ इनहिबिटर्स अगर आप इनके साथ लेंगे, किनके साथ, मिल्क एंड चीज बटर ग्रेप, इनके साथ लेंगे तो ये जो फूड प्रोडक्ट होते हैं मिल्क चीज बटर ग्रेप्स, तो इसमें एक टायरामाइन नाम का केमिकल होता है and that is present in these kind of foods. If you take these foods with your if you take a tablet of MAO inhibitor with these foods, then effect of MAO inhibitor will be nullified because tyramine is a precursor for the noradrenaline and adrenaline. ये एक होता है therapeutic incompatibility. It is a pharmacodynamic incompatibility. Posology means what? Poso means dose and logos means science. Okay, so posology is nothing but the science of dose. Child dose जो होता है उसका कैलकुलेशन वगैरह जो होता है उसमें वो उसका जो साइंस उसको बोलते हैं पोसोलॉजी, POSOLOGY. पोसोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ डोज. ओके, सो इसमें क्या होता है कि जो पहले डिस्पेंसिंग करते थे, अभी आजकल तो अभी चाइल्ड का डोज का फॉर्मुलेशन ही डायरेक्टली आ जाता है, अभी चाइल्ड का डोज एडजस्ट करने की नौबत नहीं आती। लेकिन ये कैसा कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आपको पढ़ना है। सो देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ चाइल्ड डोज इन द डिस्पेंसिंग फार्मेसी. ओके, सो फर्स्ट वन इज यंग्स फॉर्मूला. ओके, सो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली for the age of child 1 to 12. If the age of child is 1 to 12 years, then you have to apply this formula, Young's formula. What is formula? Young's formula is nothing but the age of child in years divided by age of child in year plus 12 into adult dose. मान लीजिए कि adult dose है 100 mg, ठीक है, adult dose है आपका 100 mg और आपका बच्चे का एज है 10 years. तो 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12 इंटू 100, ठीक है, ऐसा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आएगा आपका सेम क्लार्क फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ चाइल्ड फॉर ऑल एज, ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द चाइल्ड, इट इज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ चाइल्ड एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 to 12 years चाइल्ड, ठीक है। जिस बच्चे का एज है 1 से 12 साल तक, तब उसको यंग्स फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। याद रखो कौन सा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होना है, ठीक है। मान लीजिए आपको पूछा है कि द एज ऑफ चाइल्ड इज 8 month एंड अडल्ट डोज इज 500 mg, तो आप बोलेंगे सर मंथ का तो हमको मालूम ही नहीं, मंथ के लिए आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। सो क्लार्क फॉर्मूला इज नथिंग बट द वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। अगर बच्चे का वेट दिया है पाउंड्स में तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्लार्क फॉर्मूला। अगर बच्चे की उम्र दी है साल में, 1 साल 10 साल 5 साल, ठीक है, ऐसा, तब आपको यंग्स फॉर्मूला यूज करना है। अभी नेक्स्ट वन इज फ्राइड्स फॉर्मूला, इट इज फॉर चिल्ड्रन अप टू 1 year, 1 साल तक अगर बच्चा है तो वो, ठीक है। सो इफ एज ऑफ चाइल्ड इज गिवन इन द मंथ, देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला इज एज ऑफ चाइल्ड इन द मंथ डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट वन इज डीलिंग फॉर्मूला क्या है, एज इन ईयर डिवाइड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज। देन नेक्स्ट वन इज मॉटलर्स इक्वेशन, इतने सारे नहीं है, बहुत सारे बुक में सिर्फ 4 फॉर्मूले है, बहुत सारे बुक्स में सिर्फ 4 ही है, लेकिन ये बाकी के मैंने ढूंढ के निकाले, ठीक है। मॉटलर्स इक्वेशन क्या होता है कि हाइट इंटू मॉटलर्स, एज पर द मॉटलर्स इक्वेशन चाइल्ड डोज इज इक्वल टू हाइट इंटू वेट रेज टू 1/2 डिवाइड बाय 60, तो इंटू अडल्ट डोज, ऐसा इंटू अडल्ट डोज, ये आएगा आपका। इसको मॉटलर्स इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं सरफेस मीटर, सॉरी मॉटलर्स इक्वेशन जो है उसको बोलते हैं स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया फॉर्मूला, मतलब यू हैव टू चेक द
यू हैव टू चेक द सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उसका डोज बनाएंगे. देन नेक्स्ट वन इज क्राउलिंग्स फॉर्मूला. क्राउलिंग फॉर्मूला इज एज इन ईयर प्लस 1 डिवाइड बाय 24 इंटू अडल्ट डोज. देन बास्टेडोज फॉर्मूला, इसमें क्या है, बास्टेडोज में एज इन ईयर्स प्लस 3 डिवाइड बाय 30 इंटू अडल्ट डोज. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या पूछेंगे, एक तो ये तीन पूछेंगे, यंग्स फॉर्मूला, क्लार्क फॉर्मूला, प्राइड्स फॉर्मूला या फ्रेडलिंग्स फॉर्मूला. ये जो बीच में का है ये क्राउलिंग्स और मोटलर्स, ये नहीं पूछते, ठीक है. लास्ट में आता है आपका body surface area formula. Okay, body surface area formula, and out of these all these formula, most accurate formula is a body surface area formula, because body surface area जो है वो मतलब एज जो है, आप मान लीजिए कि दो बच्चे हैं आपके सामने, दोनों ही का ही एज सेम है 10 साल, ठीक है. दो बच्चे दोनों का एज सेम है 10 साल, लेकिन एक थोड़ा सा तगड़ा है मतलब हेल्दी है और एक थोड़ा सा वीक है उससे, तो किसका डोज कैसे एडजस्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू अपन एज कैलकुलेट करेंगे आपको, तो दोनों का भी डोज सेम आएगा, तो लेकिन रिस्पॉन्स भी अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि उनका ये है. तो द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला इन दैट केस इज बॉडी सर्फेस एरिया. क्या आप उनका बॉडी सर्फेस एरिया मेजर करो, उसके अकॉर्डिंगली उसका डोज दे दो. तो इतना याद रखो कि अमॉन्ग्स द ऑल फॉर्मूले बॉडी सर्फेस एरिया फॉर्मूला इज द मोस्ट एक्यूरेट, ठीक है. एंड नॉर्मल बॉडी सर्फेस एरिया ऑफ अडल्ट इज 1.73 मीटर स्क्वायर. ये एक बार ये भी पूछा था, ठीक है. सो व्हाट इज द बॉडी सर्फेस एरिया फॉर्मूला? सो BSA ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय BSA ऑफ अडल्ट. बॉडी सर्फेस एरिया ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय बॉडी सर्फेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू अडल्ट डोज, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द डोज ऑफ चाइल्ड, ठीक है. इसकी जो प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है इसके ऊपर एकदम बहुत सिंपल है. इसमें कुछ लेने जैसा कुछ है नहीं. मतलब अगर आपको एज बाय मंथ दिया है तो बस इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको बच्चे का एज मंथ में दिया है, तो यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, फ्राइड्स फॉर्मूला. इफ दे हैव गिवन एज ऑफ चाइल्ड इन द इयर्स, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. इफ द एज ऑफ चाइल्ड इज लेस देन 12, अगर 12 साल के नीचे बच्चा है तो उसको आपको यंग्स फॉर्मूला लगाना है. अडल्ट डोज दिया होगा आपको, ठीक है. क्लार्क फॉर्मूला ये कब यूज करना है, व्हेन इफ दे हैव मेंशन द वेट ऑफ चाइल्ड इन पाउंड्स, देन यू हैव टू यूज दिस. ओके, देन नेक्स्ट इज some we will discuss some few Latin terms, okay, which are important, they can be asked. I'm not going to take all the terms, because if you want to read, you can read from RM Mehta. This is the book, ठीक है. RM Mehta का बुक आता है डिस्पेंसिंग फार्मेसी में दिया है. ये बुक अगर आपके पास होगा इसमें सब कुछ दिया है. इनकॉम्पेटिबिलिटी भी थोड़ा सा डिटेल में है उसमें, ये पढ़ सकते हो आप. अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो उसे इसमें से आएगा आपको एक या दो क्वेश्चन, इसलिए सब कुछ पढ़ने मत बैठो, आप थोड़ा सा ही पढ़ो. मेन टर्म आते हैं, चलो. डोसेज फॉर्म्स, लैटिन टर्म्स, डोसेज फॉर्म. क्योंकि पहले क्या होता था, लैटिन टर्म्स यूज करते थे, अभी कोई लैटिन टर्म यूज नहीं करते, ठीक है. तो डोसेज फॉर्म्स, औरिस्टेली मींस एयर ड्रॉप. ये क्वेश्चन आया था जीपैट में, ठीक है. ये क्वेश्चन आया था जीपैट में, अभी रिसेंटली आया था. औरिस्टेली मींस एयर ड्रॉप. कैटाप्लाज्मा मींस पोल्टिस. कैटाप्लाज्मा मींस पोल्टिस. पोल्टिस में क्या होता है, ये पोल्टिस क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पाउडर. ओके, एक पाउडर होता है जो आपको, इट इज अ पाउडर मिक्सचर ऑफ ड्रग विथ पाउडर मींट फॉर सूदिंग इफेक्ट. मतलब आपने अभी मालूम नहीं मुझे कितने जन को मालूम है, एक बजरंग लेप नाम का एक आता है, एक 12 रुपए का एक पैकेट आता है बजरंग लेप. अगर किसी को मोच वगैरह आ गई या फिर किसी को कुछ किधर लग गया, वो बजरंग लेप वहां पे लगाते. दैट बजरंग लेप इज नथिंग बट द पोल्टिस. ओके, कैटाप्लाज्मा इज नथिंग बट द पोल्टिस. देन सीरियोलोस मींस यूरेथ्रल बोगी. यूरेथ्रल बोगी मींस व्हाट, यूरेथ्रल बोगी मींस यूरेथ्रल सपोजिटरी. अभी देखो, जो यूरेथ्रल बोगी जो होता है, बिकॉज ऑफ यूरेथ्रा का साइज जो है ना वो बहुत कम होता है, तो इसलिए पेंसिल मतलब पेंसिल साइज का होता है ये बोगी, यूरेथ्रल बोगी. इन्फेक्शन में यूज करते हैं अगर यूरेथ्रल इन्फेक्शन है तो, ठीक है. देन कोलुनेरियम मींस नजल वॉश. एंड कोलुटोरियम मींस
mouthwash. Colunarium nasal wash, colutorium mouthwash. Hustus means क्या? Draught means a single जो है ना इरिगेशन सोल्यूशन होता है ड्रॉट, एक ही इसमें करना है आपको, ठीक है, उसको ड्रॉट बोलते हैं हस्टस. नेबुला मीन्स स्प्रे सॉल्यूशन. देन ओबलाटम मीन्स कैचेट. ओबलाटम मीन्स कैचेट और सैचेट, ठीक है. पुलविस, PULIVIS, पुलविस मीन्स ए डस्टिंग पाउडर और ए पाउडर, ठीक है. देन यूजेंटुम मीन्स ऑइंटमेंट. यूजेंटुम मीन्स ऑइंटमेंट, ये एक बार पूछा था यूजेंटुम, और ये भी ऑरिस्टली भी पूछा था. देन नेस्ट्रिली मीन्स नजल ड्रॉप. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें बहुत सारा है, लेकिन ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं. अगर आपको चाहिए तो बुक में मिल जाएगा, ठीक है. इसके लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक भी आता है आपका, उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग फॉर फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट बाय कूपर एंड गन, ठीक है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको करना पड़ेगा रेफर, जरूरत नहीं, ठीक है. तो मैं एक यहाँ पे टेबल है, इसमें से जितना इम्पोर्टेंट मैंने लिया है, जैसे ऑरेस्टेली मतलब एयर ड्रॉप, कैप्सुला मतलब कैप्सुला तो आपको समझ में आया, कैप्सुला मतलब कैप्सूल, ठीक है. कैटाप्लाज्मा मतलब कैटाप्लाज्मा मतलब पोल्टिस. बाकी क्रीमर मतलब क्रीम, आपको मालूम है, ये इजी है, जो इजी है वो नहीं लिया मैं, कि ये सबको याद रखते, लेकिन ये याद नहीं रहती इसलिए, और क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है. तो ऑरेस्टेली मीन्स एयर ड्रॉप, कैटाप्लाज्मा मीन्स पोल्टिस, सेरुलस मीन्स यूरेथ्रल बोगीज, कोलुनेरियम मीन्स nasal drop, colutorium means mouthwash, then hustus means draught, nebula means spray solution, then oblatum means catchit, pulvis means powder or dusting powder, eugentum means ointment, and neuristalis means nasal drop, ठीक है. So this is the dosage form, Latin terms for dosage form. एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, अप्लाई कैसे करना है, लेना कैसे है, उसके लिए भी टर्म्स है. जैसे अडेंडुस, एडेंडुस मतलब क्या? टू बी एडेड. एडेंडुस टू बी एडेड. एप्लीकेंडुस मीन्स टू बी अप्लाइड. एप्लीकेंडुस, एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस इज एप्लीकेंडुस. एडेंडुस मीन्स टू बी एडेड. एप्लीकेंडुस मीन्स टू बी अप्लाइड. डेग्लूटेंडुस मीन्स टू बी swallowed, ठीक है. डेग्लूटेंडुस मीन्स टू बी swallowed. डेग्लूटेशन का प्रोसेस क्या है? swallowing. So deglutitionus means to be swallowed. Effricandus means to be rubbed, to be applied by rubbing action, ठीक है. मतलब ऐसा, मतलब पूरा ये करना है आपको, जोर से अप्लाई करना है उसको, ठीक है. जैसे आप ऑइंटमेंट ले स्मूथली, जैसे ऑइंटमेंट ले, जैसे आप तेल लगाते हो, तेल कैसा स्मूथली लगाते हो, ठीक है. लेकिन तेल मालिश करते समय क्या करते हो, मतलब जोर देके करते हो, तो रबिंग, दैट इज इनफ्रिकैंडुस. Then sumendus means to be used. Sugendus means to be sucked, ठीक है. ये होना चाहिए. अब adendus means to be added, applicandus to be applied, deglutendus to be swallowed, effricandus to be rubbed, sumendus to be used, sugendus to be sucked. Okay. Then time of administration. ओके. तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ये तो मैक्सिमम इसके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के. तो लेकिन इसमें का ये क्वेश्चन जीपैट के लिए भी आया था, ये ऑरेस्टेली और ये यूजेंडम, इसलिए लेना पड़ रहा है. सो टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब एडमिनिस्ट्रेट करें? सैमिल इन डी मीन्स वंस अ डे. टेर इन डी मीन्स थ्राइस अ डे. बिस इन डी मीन्स ट्वाइस अ डे, ठीक है. ऐसा बाकी बहुत सारा है. 6 इन डी बहुत है इसमें. बिस इन डी, टेर इन डी, क्वार्टर इन डी, सेक्सिस्ट इन डी, टेर इन डी, क्वार्टर इन डी. मतलब टेर मीन्स थ्राइस अ डे, क्वार्टर मीन्स 4 डे. क्वार्टर मीन्स नहीं तो आप सोचेंगे सर क्या बोल रहे हैं, हमको क्या पढ़ रहे हैं. क्वार्टर वो नहीं, वो क्वार्टर नहीं, ये क्वार्टर मतलब 4, वो क्वार्टर मतलब वो अलग है, ठीक है. नेक्स्ट इज द टाइम, आवर एंड कोरिलेटेड टाइम, ठीक है. ओमनी होरा मीन्स एवरी आवर. ओमनी मीन्स एवरी आवर. उसका क्या है? अल्टरनेट होरा मीन्स एवरी 2 आवर्स. ओमनी होरा मीन्स एवरी आवर, alternate hora means every 2 hours. Antisibos, anti means opposite. Antisibos means before meal. Post-sibos means after meal. Antisibos means before meal. Post-sibos means after meal, ठीक है. ये कुछ टर्म्स है जितने इम्पोर्टेंट है उतने लिए मैंने, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें. Then types of balance is used in dispensing. There are 3 types of balance. Those are used in the dispensing.
क्लास ए बैलेंस, क्लास बी बैलेंस, क्लास सी बैलेंस। ओके, सो क्लास ए बैलेंस का मिनिमम वेइंग कैपेसिटी है 50 मिलीग्राम, ठीक है, मैक्सिमम है 1 ग्राम। क्लास बी का है 100 मिलीग्राम कैपेसिटी, मैक्सिमम में 50 ग्राम। क्लास सी का है 1 ग्राम, मैक्सिमम में 2 kg। ये तीन टाइप ऑफ बैलेंस रहते हैं मेनली। बैलेंस दे आर यूज टू वेट मेक मेजर द वेट। ओके, सो क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। क्लास ए बैलेंस जो होता है वो सबसे कम, यू कैन मेजर अ क्वांटिटी इन मिलीग्राम्स, दैट इज अ क्लास वन। 50 मिलीग्राम उसका मिनिमम कैपेसिटी होता है, so you can weigh 50 milligram powder in a class A balance। okay, so there was once question, you can measure, मतलब वहां पे एक ऐसा क्वेश्चन था कि आप 55 mg क्वांटिटी मेजर करना है तो आप कौन से बैलेंस से यूज करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ऑप्शन दिए थे ऐसे, तो क्लास ए। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, वेरी शॉर्ट सेशन।